Morning everyone. As you know that we are discussing the amount of work done during expansion and compression we have done. For that we have used two methods. First one is analytical method, and from that we find out the work done will be equal to the integral of P into dV, P dV up to a limit from initial volume to the final volume. If it is V1 and V2, then W will be equal to integral V1 to V2 P into dV. Clear? Then graphically we have find out कि if you want to find out the total amount of work done will be equal to the area of the curve या area of the PV diagram, PV indicator diagram enclosed between the volume axis एंड पीवी कर्व. जो पीवी कर्व है विथ द वॉल्यूम एक्सिस से जो भी कर्व्ड एरिया होगा, जो भी इंक्लोज्ड एरिया होगा, दैट विल मेजर द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. तो ऑन दैट बेसिस वी हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी हैव टू सॉल्व इट. हियर वी विल सी all the steps. We will find out the work individually and we will also find out the work by using the cyclic process. What will be the total amount of work in a cyclic process, that we will also calculate it. तो we have given the question. सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं. हमें क्या दिया हुआ है? The PV diagram for a cyclic process. Cyclic process, you know that कि if the system undergoes through a various changes, through a series of changes and returns to its initial positions. So that will be the cyclic process. When you will make the figure, you will see that this is a cyclic process. In a triangle ABC drawn in order, हमें दिया हुआ है coordinates of A, B and C are 4, 1, 2, 4 and 2, 1. A के coordinate 4, 1, B का coordinate दिया है 2, 4 and the coordinates of C is equal to 2, 1. The coordinates are in order of P and V. मतलब क्या है? जो पहला दिया हुआ है this first जो इसका है coordinates, that is the pressure and second coordinate represent the volume. प्रेशर को मेजर किया गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर and volume is in liter. Then what we have to calculate the work done during the process from A to B. फिगर बनाएंगे, it will be clear. जब सिस्टम B से C तक जाता है, then what will be the amount of work done? When it goes from C to A, then what will be the amount of work done? Individually we have to find out. Then we have to find out total work done in complete cycle. तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं, then it will be clear. तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? We have to make a PV diagram. तो PV diagram के लिए we have to make a exercise. ये हमारे पास PV diagram we are going to make for this system. ये हमारे पास है, this is the volume axis and this is what? This is the pressure. This is the volume or this is what? This is the pressure axis. This is measured in Newton per meter square or this is measured in liter. ये दिया हुआ है. We have given 3 point A, B, C. We have to plot it. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक्सिस मानते हैं. This 1, 2, 3, 4. You see maximum voltage वॉल्यूम कितना है? 4 तक है. We don't need to take more value. प्रेशर में क्या है? 2 to 4. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1, this is 2, this is 3 and this is 4. We don't need to take many more value. Clear? अब हम बात कर रहे हैं हमारा पॉइंट A कहां पे? 4 और 1 पे. 4 प्रेशर और 1 वॉल्यूम. मतलब हमारा ये पॉइंट यहां पे कहीं होगा. This will be the point A. Clear? पॉइंट B कहां है? 2 and 4 पे. मतलब प्रेशर 2 एंड वॉल्यूम कितना है? 4. तो ये आपका पॉइंट होगा समथिंग हियर. दिस इज द पॉइंट B. मतलब वॉल्यूम 4 एंड प्रेशर इज 2. पहले 2 एंड 4 पे. देन 2, 1. 2 क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम कितना है? 1. मतलब हमारे पास एक पॉइंट यहां पे होगा. दिस इज द पॉइंट C. दिस वे वी हैव प्लॉटेड द पॉइंट. दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? दिस आई हैव प्लॉटेड 4, 1. दिस B का कोऑर्डिनेट कितना है? 2 and 4.
एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी? 2 and 1. इसका कोऑर्डिनेट हमने बनाया है 2 और नाउ वी आर गोइंग टू ज्वाइन इट. हम ज्वाइन करते हैं. सिस्टम कहां से कहां तक जाता है? ए से बी तक. तो सबसे पहले हमारा सिस्टम मूव किया फ्रॉम ए टू बी. व्हेन इट मूव फ्रॉम ए टू बी वी हैव टू मेक ए ट्रायंगल. देखेंगे विल गेट ए फाइनली विल गेट ए ट्रायंगल. ए से बी आपका सिस्टम पहुंचा है दिस. फिर क्या हो रहा है? बी टू सी इट रिसीव. बी से सी आपका देखते हैं. ये हमारा हो गया बी टू सी. फिर देन सी टू ए. ये हमारा सिस्टम अंडरगो है सी टू ए. देखिए एंड इट फाइनली रीचेस टू द इनिशियल पोजीशन. थ्रू ए वेरियस चेंजेस इट रीचेस टू इनिशियल पोजीशन मींस दिस इज ए साइकिल. यह आपका एक साइकिल हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू ज्वाइन ए बी सी. हमने मान लिया है. देन वी आर गोइंग टू टेक डी एंड ई सम अदर पॉइंट. इसको भी हमें जरूरत पड़ेगी. वी विल नीड इट. सी तो हमने ले लिया है. दिस इज सी डी एंड ई. सी डी ई. क्लियर? ये हमने कोऑर्डिनेट. अब हमें पता करना है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन द सिस्टम अंडरगो फ्रॉम ए टू बी. आपको पता है कि अगर ग्राफिकल वेरिएशंस में देयर इज एक्सटेंशन इन वैल्यू एक्सपेंशन होगा तो ये अगर आपका वर्क डन फाइंड आउट करना है तो क्या कहते हैं? वी विल फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ एरिया इंक्लोज्ड बाय दिस पीवी कर्व एंड द वॉल्यूम एक्सिस. इस वॉल्यूम एक्सिस से और इस पीवी कर्व से जो भी एरिया इंक्लोज होगी दैट विल फाइंड आउट. तो इंडिविजुअली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि व्हाट विल बी द फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्रॉम ए टू बी. पहला हमारा क्या होगा? केस फर्स्ट हमारी है वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस है? ए टू बी. और ये क्या हो रहा है? देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम. देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना 1 है और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 4 है. मीन्स देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम. ये क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है. ये हम क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज दिस विल क्लियर द साइन ऑफ द वर्क डन. और ये ग्राफ भी देखें तो ये क्या ऑर्डर है? क्लॉकवाइज है. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द पॉजिटिव साइन. तो ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए बी. डब्ल्यू ए बी कितना हो जाएगा? दिस टू विल टेक प्लस. क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन है और ग्राफ की जो ट्रेसिंग है दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये हो गया प्लस. अब हम बात कर रहे हैं क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ. किसकी एरिया निकालेंगे? इसको हम भूल जाते हैं. ये क्या फिगर बना है? ए बी डी ई ए. ये क्या है? दिस इज ए ट्रेपेजियम. तो या तो आप ट्रेपेजियम की एरिया निकाल लीजिए बिकॉज दिस आर द पैरेलल साइड. ए ई एंड बी डी इज ए पैरेलल साइड और ये दीज आर द टू नॉन पैरेलल साइड. तो ये फिगर क्या है? ट्रेपेजियम है. या तो वैसे एरिया निकाल लें या तो हम ये ट्रायंगल की एरिया निकाल लें प्लस ये रेक्टेंगल की एरिया निकाल लें. टोटल हमें एरिया पता करना है ए बी डी ई और ए. तो वी हैव टू वे. या तो हम ट्रेपेजियम की एरिया फाइंड आउट कर लें या हम ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल की एरिया पता कर लें. वो द वे वी हैव. तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी. ये क्या बताएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का नाम दे दीजिए ए बी डी ई देन ए बी डी ई एंड ए. और ये क्या है? अगर वो फार्मूला अगर नहीं पता आपको तो एरिया ऑफ, ये प्लस ही रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी डी ई सी. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस चीज का? बी डी ई ए. क्लियर? अब हम पता करेंगे. वी नीड टू इरेज दिस थिंग्स. तो आई थिंक क्वेश्चंस में हमें पता ही करना है, ये पता करना है, ये पता करना है, ये पता करना है एंड द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क. तो आई थिंक ये हम इरेज कर सकते हैं. यू नोट डाउन द क्वेश्चन प्रॉपरली. तो हमें इस चीज की जरूरत नहीं है. तो वी आर गोइंग टू इरेज दिस थिंग्स. हमें पता करना है ये चीज, इसको हम लीव कर देते हैं, बाकी सब इरेज कर दे रहे हैं. दिस ग्राफ वी आर नॉट गोइंग टू इरेज, वी नीड दिस. तो ये चीज हम इरेज कर ले रहे हैं. डब्ल्यू ए बी फाइंड आउट कर रहे हैं.
For that we have to calculate the area. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या है? दिस विल बी इक्वल टू, यहां से हम यहां आ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट. हाफ बेस इसका क्या है? BC, और इसकी हाइट क्या है? AC. तो क्या हो जाएगा? हाफ BC इंटू AC. हाफ BC बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट CA प्लस एरिया ऑफ दिस बेस मल्टीप्लाइड बाई मतलब L इंटू H, मतलब L इंटू B, लेंथ और ब्रेथ. लेंथ क्या? ED मल्टीप्लाइड बाई BD. ED मल्टीप्लाइड बाई BD. ये हो गया. देन व्हाट विल बी देयर? अब दिस विल बी हाउ मच? 1/2 इंटू BC कितना है? यहां से ये टोटल कितना है? 4. और ये कितना है? मतलब इसमें से OC क्या हो जाएगा? BC बराबर OB माइनस OC. ये तो आपका BC होगा. तो OB कितना है? 4. OC कितना है? 3. या तो यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. 1 2 3. ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 4 माइनस 1 3. ये आपका कितना हो जाएगा? या तो लिख लीजिए 4 माइनस 1 इंटू CA. C और A, तो ये कितना है? CA कितना हो जाएगा? ये पूरा 4 है और दिस इज 2. ये हो जाएगा 4 माइनस 2. दिस देन वी हैव प्लस ED कितना है? ED ये हो जाएगा 4 माइनस 1 और देन BD ये कितना है? दिस इज 2. ये हो जाएगा इंटू 2. क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं दिस वी आर पुटिंग वैल्यू. ये आपका 1/2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू 2. दिस विल बी हाउ मच? 3. अब वन मोर थिंग वी विल डू दिस. एक चीज हम यहाँ पे क्या है, हमें दिया हुआ है दिस इज इन लीटर. तो मालूम अगर लीटर में दिया हुआ तो वी विल कन्वर्ट इन मीटर क्यूब में. तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू, या तो हम वी कैन 3 2 जा 6 हम बाद में कर लेंगे. दिस 2 विल बी कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 3 प्लस दिस इज 3 प्लस 6. ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3. Why we have done? Because we have converted liter. लीटर को हमने कन्वर्ट किया है बाय मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 3 माइनस 3 पर मीटर क्यूब. ये कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब. दिस वी हैव कन्वर्टेड. ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि लीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया है इन मीटर. अब ये आपका जो आएगा दिस विल कम इन जूल. यहां पर नोट कर सकते हैं कि ये हमारा जो लीटर है 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. तो दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन. ये आपका हो जाएगा WAB, मतलब वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन या व्हेन द सिस्टम गोज फ्रॉम A to B इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3. क्लियर? तो दिस वर्क डन वी हैव डन. नाउ वी विल फाइंड आउट द वर्क डन. एक चीज अगर हम लिख लेते हैं इस चीज को, तो हमारा WAB कितना आ गया? दिस हैज कम 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3. अब हम बात करेंगे व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम B to C. तो B to C में क्या होगा? वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ओनली. इससे हमें कोई मतलब नहीं है. तो दिस इज व्हाट? दिस इज द कंप्रेशन है. तो दैट वी विल फाइंड आउट. ये हम हटा दे रहे हैं. दैट तो वी हैव रिटन देयर, वी डोंट नीड टू राइट डाउन हियर. सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा? इसको आप कॉपी कर लेंगे प्रॉपरली. वी नीड दिस इज ऑल्सो WAB I have written here. और सेम वर्क वी विल डू इट. लीटर को हम मीटर क्यूब में बदलेंगे. दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द यूनिट इन जूल. वर्क यूनिट हम जूल में तभी मिलेगी हमें MKS सिस्टम में, SI सिस्टम में. तो सेकेंड हमारा वर्क डन क्या होगा? वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस B to C. सेकेंड हमारा है फर्स्ट आई हैव कैलकुलेटेड वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस है? B to C. और क्या हो रहा है? दिस इज ए कंप्रेशन. ये क्या है? कंप्रेशन.
ड्यूरिंग द कंप्रेशन, ये कितना हो जाएगा WBC, और ये कौन सी एरिया होगी, एरिया BC, एंड दिस विल टेक माइनस, क्यों, क्योंकि देयर इज अ कंप्रेशन, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो ये आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, BDEC, और इसका क्या हो जाएगा माइनस, एंड दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू, इसका कितना आ जाएगा, एरिया में लेंथ कितना है, ये दिस इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम इंटू इसकी हाइट, दिस इज व्हाट, प्रेशर कितना है 2, ये कितना आ जाएगा 3 2 6 -6 इंटू 10⁻³ जूल। दिस मच वर्क विल बी डन ड्यूरिंग द प्रोसेस WBC, वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस B to C -6 इंटू 10⁻³ जूल। इसको भी लिख रहे हैं, दिस वी हैव, ये हमने पता कर लिया। WBC कितना आया, इज इक्वल टू -6 इंटू 10⁻³ जूल, माइनस सो दैट देयर इज ए कंप्रेशन। देन हम बात कर रहे हैं व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम C to A, WCA कितना हो जाएगा, थर्ड हम पता कर रहे हैं कि what will be the amount of work done during the process, work done during the process, कौन सा प्रोसेस है, C to A, और C to A में we are seeing that there is no change in the volume, dV क्या है, वॉल्यूम आपका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 1 है, और यहाँ पे वॉल्यूम 1 है, दैट्स वाई जो वर्क डन जो होगा WCA दैट विल बी इक्वल टू 0। आप याद रखिएगा कि इफ देयर इज ए नो चेंज इन द वॉल्यूम then total of amount of work done by the system or on the system that will be always 0, because work done बराबर क्या होता है P into dV, और अगर dV कांस्टेंट है तो उस तरह से भी वर्क डन 0 होगा। या तो यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी एरिया इंक्लूड नहीं है, PV कर्व और y एक्सिस के बीच में या तो वॉल्यूम एक्सिस के बीच में कोई भी एरिया इंक्लूड नहीं है, दैट्स व्हाई टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी 0। क्लियर, तो दैट्स व्हाई WCA कितना हो जाएगा, WCA will be equal to 0, क्यों, क्योंकि there is a constant value। अब हमें पता करना है what will be the total, ये देखिए total work done in a complete cycle, तो क्या करेंगे, we will add all the work, so therefore total work done क्या है, in the complete cycle, ये W बराबर क्या हो जाएगा, WAB प्लस WBC प्लस WCA, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ये कितना आया है 9 इंटू 10⁻³ प्लस, और ये माइनस है तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग -6 इंटू 10⁻³ प्लस 0, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ जूल। क्लियर, ये आपका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हो गया। ये W बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ जूल। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो आपने देखिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन से कैलकुलेट किया, अगर सिर्फ हमें पता करना होता था कि व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग दिस कंप्लीट साइकिल, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस इनक्लोज्ड वॉल्यूम, ये जो पूरी एरिया है सिर्फ इसे ही हमें पता करना पड़ता। तो इफ यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC आप पता करें, या तो फर्स्ट केस में आई हैव ऑलरेडी फाइंड आउट, वो कितना आया था 3 इंटू 10⁻³ ही आया था, एरिया इसके निकालेंगे तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय 2, तो वो कितना आएगा, दैट विल बी द 3 इंटू 10⁻³। तो अगर हमें इंडिविजुअल वर्क पता न करना हो तो सिर्फ अगर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पता करना है तो वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड फिगर ही हम पता करेंगे, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो दिस वे वी हैव कंप्लीट कि हमें इंडिविजुअली भी हमने वर्क डन पता कर लिया और हमने टोटल वर्क डन भी पता कर लिया। क्लियर, तो बोथ विल बी द सेम, यू कैन डू योरसेल्फ। तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस